Ignited Minds Tutorials has recently released a comprehensive series of videos covering the topic of electric field and charges for Class 12 Physics CBSE, Maharashtra State Board, and IIT/NEET, and various CET syllabus. The videos aim to provide a thorough understanding of these complex concepts through clear, concise explanations and problem walkthroughs. In addition to covering the basic principles, the series also includes previous year's questions, allowing students to practice and prepare for their exams effectively. The tutorials are designed to help students build a strong foundation in this important topic, ensuring they are well prepared to tackle any related questions that may come their way. Whether you are a student studying for board exams or preparing for competitive entrance exams like IIT and NET, these videos offer a valuable resource to aid in your studies. With the guidance of experienced educators, learners can gain a deeper insight into the subject and develop the skills necessary to excel in their academic pursuits. Overall, the series of videos from Ignited Minds Tutorials serves as a valuable, knowledge-based resource, providing a clear and comprehensive explanation of electric field and charges for students looking to enhance their understanding of the subject. Okay, बच्चा पार्टी we will be discussing about PYQs about electric field and charges. ठीक है, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर पे. ठीक है, ओके. चलिए भाई साहब, 2021-22 का MCQ में क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में. अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट X इज रिपेल्ड बाय अनदर ऑब्जेक्ट Y. तो नेगेटिवली चार्ज है X आपका. ठीक है, आपका भाई साहब X क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. ये अगर Y से रिपेल हो रहा है तो Y को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा. हाउएवर एन ऑब्जेक्ट Z इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट Y. ठीक है, ये Z क्या हो रहा है भाई साहब, इससे अट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर ऑब्जेक्ट Z? पॉजिटिव चार्ज ओनली, नेगेटिव चार्ज ओनली, न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज? नहीं, पॉजिटिव नहीं. देखो यहाँ पे क्या पूछा है, देखो मोस्ट पॉसिबिलिटी. कोई भी चार्ज बॉडी किसी भी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगी, तो Z यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है और Z यहाँ पे न्यूट्रल भी हो सकता है. अगर न्यूट्रल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी होगा तो भी पुल होगा. ठीक है, सो न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज ओनली ये हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज ओनली नॉट पॉसिबल. न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज ये भी हो सकता है. ये सत्य है, ये हो सकता है ना हो, है ना. न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज ये होगा ही होगा. अगर न्यूट्रल भी रहा बॉडी तो भी अट्रैक्ट होगा. आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट पीपल? ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे सी, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज एनी अनचार्ज बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय अ चार्ज बॉडी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव. आर वी क्लियर? 2021-22 में CBSE में ये सवाल पूछा गया था. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए भाई साहब, निपटते हैं आपके दो नेक्स्ट सवालों से. बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex spheres are sprayed into a chamber and become charged with charges plus 3e plus 5e or minus 3e. ठीक है, in an experiment 3 microscopic latex spheres are sprayed into a chamber and become charged with charges है आपके. All the 3 spheres come in contact simultaneously for a moment and get separated. Which one of the following are possible values for the final charge on the sphere? तो final charge on the sphere कौन सा possible value हो जाएगा बताइए. देखो, all the 3 spheres come in contact simultaneously for a moment and get separated. Simultaneously for a moment and get separated. ठीक है, which of the following are possible values for the final? हाँ, कौन सा? B. 6 and -7. Reason? नहीं, वो B है, इधर खिसक गया है वो B. ये ऑप्शन B है, इधर खिसक गया है बस. बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोलो. 2021-22 का क्वेश्चन है. देखो चार्ज आपके क्या क्या है, देखो
Q1 Q2 प्लस Q3 ये कितना हो जाएगा आपका 5। एज द चार्ज इज कंजर्व, सो इन ऑप्शन ए Q आपका कितना हो गया, देखिए 5 माइनस 4 प्लस 5, तो आपका कितना आ रहा है 6। ऑप्शन समझ में आ रहा है, ये देखिए हाँ 3 प्लस 5 8 8 माइनस 3 ये कितना हो गया भाई साहब 5, ठीक है। तो आपका चार्ज Q1 कितना है, चार्ज Q1 हो गया भाई साहब आपका 3e इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब, ठीक है। Q2 आपका कितना है भाई साहब आपका प्लस 5e प्लस है सॉरी, ठीक है। और ये Q3 कितना हो गया आपका माइनस 3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 5e, ठीक है। तो अभी आपका क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब आपका टोटल चार्ज जो होगा अभी आपको ना एमसीक्यू में ना कभी कभी ऑप्शंस में जाना पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। या टोटल चार्ज आपका कितना हो जाएगा प्लस 5e, इस ऑप्शन में आपको कितना मिल रहा है 5 माइनस 4 प्लस 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 प्लस 5 6e मिल रहा है, तो ये नहीं होगा भाई साहब। इसमें आइए, यहाँ पे आपका 6 प्लस 6 12 12 माइनस 7 ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे भाई साहब 8 माइनस 4 हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस 7 12 12 माइनस 8 ये भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों ये होगा, बिकॉज और कौन सी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आपका भाई साहब चार्ज कंजर्व रहेगा। क्वांटाइजेशन मतलब होता है ई का होल नंबर मल्टीपल ही हो सकता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का हमेशा होल नंबर मल्टीपल ही होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। और यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम एंड गेन्स दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, द नेट चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स हाउ मच। तो आपने बस अब इतना इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है, 1 कूलम का चार्ज उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, दिस मच इलेक्ट्रॉन्स, तो n इंटू ई कर लो भाई साहब, n इंटू ई, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे 5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको क्या दे देगा 10⁻⁻1, और 16 इंटू 5 का आपको आ जाएगा 80, है ना, 8 आ जाएगा बेसिकली, 8 इंटू 10⁻⁻1, तो यहाँ पे 0.8 कूलम हो गया। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 1 कूलम प्लस 0.8, दैट इज 1.1 कूलम हो गया आपका यहाँ पे, और ये हो गया भाई साहब 0.8, तो यहाँ पे हो गया आपका 1 कूलम चार्ज पॉजिटिव है ना, और ये आपका क्या है नेगेटिव है, दिस इज बेसिकली नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स आपने गेन किए हैं, तो ये टोटल चार्ज आपका क्या है पॉजिटिव है 1 कूलम का, और इलेक्ट्रॉन्स का टोटल चार्ज कितना हो जाएगा माइनस 0.8 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.8, सो दैट विल बी हाउ मच 0.2 कूलम। ये आपका भाई साहब 0.2 कूलम का चार्ज हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.2 कूलम, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी the total charge. Again both are questions asked in 2021 and 22, easily manageable questions है, कोई हाई फंडा यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको तो आपको निपटाना ही पड़ेगा, चलिए चलिए जल्दी करना है। कूलम्स लॉ पे क्वेश्चन है 2021-22 में आया हुआ है, फटाफट फटाफट गाइस, क्विक 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 जल्दी कीजिए। देखो इसको कैसे करोगे, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसको कॉपी कर सकते थे ना, नहीं होगा कॉपी। चलिए भाई साहब अपने को डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स एक्सिस में चार्ज, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया भाई साहब एक्स एक्सिस में चार्ज, ये हो गया आपका वाई एक्सिस में चार्ज, ये हो गया आपका माइनस क्यू, ये हो गया भाई साहब आपका प्लस क्यू, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस ए, ये वाला हो गया भाई साहब आपका डिस्टेंस ए, ये हो गया आपका क्यू नॉट, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो इसके वजह से यहाँ पे क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा, ये फोर्स इस तरफ जाएगा भाई साहब, है ना, इसके वजह से, इस वाले चार्ज की वजह से फोर्स इस तरफ जाएगा, तो लेट्स से ये फोर्स F1 हो गया,
इसके वजह से चार्ज भाई साहब किस तरफ जाएगा, फोर्स किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये भाई साहब नेगेटिव है, ये रिपल्सिव है तो इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो इसका मतलब F2 भाई साहब आपका किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। ठीक है, ये इन दोनों का रिजल्ट, पहले समझ लो कि कहां पे आपका रिजल्टेंट फोर्स आएगा भाई साहब। रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, करते हैं। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, यहां पे एक चार्ज है प्लस Q और यहां पे एक चार्ज है Q0, दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली रिपल्शन होगा। अभी इस चार्ज पे फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, भूल जाओ, मतलब ये कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा हो, इस पे तो फोर्स उसी तरफ लगेगा ना, इसको धक्का मार रहा है उस तरफ, है ना। ठीक है, ये आपका प्लस चार्ज है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की तरफ प्लस चार्ज खींचेगा भाई साहब, तो ये भी इसकी तरफ खींचेगा। इन दोनों में क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा ना। इन दोनों में क्या है, रिपल्सिव फोर्स है, तो ये फोर्स इस तरफ। इन दोनों में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये इधर खींचेगा, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, बाकी सब भूल जाओ। तो ये वाला फोर्स किस तरफ होगा, F2 इस तरफ होगा, F1 इस तरफ होगा। तो इस एक चार्ज पे दो फोर्सेस लग रहे हैं विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वन इज F1 एंड द अदर वन इज F2। सो वेयर विल बी द रिजल्टेंट, द रिजल्टेंट विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, और रिजल्टेंट आपको कैसे मिलेगा, वेक्टर एडिशन कीजिए भाई साहब। वेक्टर एडिशन में आपको मालूम है आपका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और cos थीटा यहाँ पे क्या है भाई साहब, 90 है। 90 क्यों है, समझ में आ रहा है, MCQ है, MCQ को MCQ की तरह ही सॉल्व करना है, ये सब लिखना नहीं है आपको कहां से क्या क्या आया। ठीक है, क्लियर है। cos 90 मतलब ये 0 हो गया, तो मतलब ये कितना हो गया बोलो, आपका F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब। ओके, चलिए यहां पे करते हैं, आपका कितना हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी, तो ये हो गया, रहे ये हो गया आपका कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, F1 1/4 पाई, इसको तो अपन यहाँ पे K दिया हुआ है, चलिए तो यहाँ पे अपन K² लिख सकते हैं। F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ये निकाल लो भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन A का स्क्वायर। F2 की वैल्यू बोलो बच्चा बाड़ी, K नहीं, माइनस नहीं होगा, अरे आप डायरेक्शन ले रहे हो ना भाई साहब, तो आप माइनस क्यों लोगे फिर से, या तो डायरेक्शन ले लो या तो माइनस ले लो भाई साहब, माइनस नहीं लोगे आप। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बोल रहा हूं, देखो ये माइनस क्यों है, मतलब इधर होगा, डोंट टेक द चार्ज का वैल्यू मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो फोर्स के वजह से है, चार्ज की वजह से नहीं है, तो यहाँ पे माइनस डायरेक्शन डाल दोगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, Q0 अपॉन A का स्क्वायर। अपने को मालूम है F1 और F2 के बीच में 90 डिग्री है, और वो अपने पहले ही अप्लाई कर दिया है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, ये दोनों का स्क्वायर ऐड होगा ना, तो ये ऐसा लिख सकते हैं 2Q² Q और Q0 का भाई साहब स्क्वायर और A⁴। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब, √2 K Q0 अपॉन A का स्क्वायर। सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं, चलिए भाई साहब यहाँ पे, सो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, यहाँ पे ये गलती मत कर बैठना माइनस क्यों लेने की, क्योंकि तुम भाई साहब ऑलरेडी डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हो, आप बोल रहे हो ना कि डायरेक्शन इस तरफ है, तो वो कंसीडर हो ही गया है आपके। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाक से, क्विकेस्ट 2021-22 का क्वेश्चन है। 4 ऑब्जेक्ट्स W X Y Z, अच्छा जी, each with charge Q are fixed at 4 points of a square of site D. Okay, objects X and Z are on the midpoints of the sides of the square. The electrostatic force exerted by object W on X is F. Okay भाई साहब, then the magnitude of the force exerted by object W on Z, easy है भाई साहब, चलिए फटाफट, easy है, क्विक। देखो ये आपका एक स्क्वायर है ना भाई साहब, और स्क्वायर में क्या क्या है, इधर है भाई साहब आपका W, दिस इज योर W, ये आपका मिड पॉइंट है भाई साहब X, और ये भाई साहब आपका Y। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है भाई साहब, डिस्टेंस इज D। ठीक है, समझ में आतम? ओके,
और यहाँ पे है भाई साहब z। क्लियर है? मुझे बताओ ये स्क्वायर है तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2 और ये वाला भी कितना हो जाएगा d/2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके चलिए, ये हो गया आपका d/2 d/2 और ये वाला भाई साहब कितना हो गया d/2। क्लियर है भाई साहब? ओके, अभी आपको क्या बोला जा रहा है? 4 ऑब्जेक्ट्स ईच विथ चार्ज, सबका चार्ज भाई साहब देखो यहाँ पे प्लस क्यू है, ये वाला भी भाई साहब आपका प्लस क्यू, सब में है ना, सब पॉइंट्स पे है। ओके चलिए, यहाँ पे भी भाई साहब आपका प्लस क्यू और यहाँ पे भी भाई साहब आपका प्लस क्यू। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ रहा है? ये सब पॉइंट्स पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट्स क्या, हाँ, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट W ऑन x, ये वाला जो फोर्स है वो कितना है भाई साहब F की वैल्यू बता सकते हो मुझे? क्या हो जाएगी? बोलो बच्चा पार्टी, जल्दी से बोलो, एकदम अच्छे बच्चे की तरह जल्दी बोलो फटाफट। ठीक है चलिए, तो F की वैल्यू k q का स्क्वायर अपॉन d/2 का स्क्वायर, ये सबको समझ में आ रहा है? ठीक है चलिए भाई साहब, कितना हो जाएगा k q का स्क्वायर, 4 ऊपर गया, अपॉन d का स्क्वायर, ये आपने कूलम्स लॉ लगा दिया भाई साहब। ठीक है, तो ये तो हाल फिलहाल हो गई F की वैल्यू। नाउ यहाँ पे F के वजह से, सॉरी अपना W के वजह से, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z, W ऑन Z कितना हो जाएगा? तो W और Z के बीच में आपको सिर्फ यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, जो आराम से आप भाई साहब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। तो ऑब्वियसली ये हो गया भाई साहब आपका परपेंडिकुलर, इसमें आपका इसका वैल्यू कितना हो गया d/2, ये हो गया d, इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा बोलो? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ d/2 का भाई साहब स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। मामला समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, सो दिस विल बी हाउ मच? ये हो गया d²/4 प्लस d का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच बच्चा पार्टी? ये हो गया 5d²/4। हाँ जी, हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइट h, है ना, ये हो गया हाइट h। क्लियर है? ओके, अभी अपन इन दोनों के बीच में अगर कर रहे हैं तो मुझे बताओ कितना, ये आपका डिस्टेंस हो गया भाई साहब, ये डिस्टेंस हो गया है ना, अंडर रूट 5d²/4। ठीक है, ये भी अंडर रूट में ही है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर फोर्स, ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड फोर्स जो है, ठीक है, लेट्स से ये F' है, ये हो जाएगा कितना? k, अगेन वही सेम है, q² ये इसका स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 5d²/4 का भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, सो दैट विल बी kq² अपॉन, यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 5d का स्क्वायर और ये 4 ऊपर चला गया, है ना? ठीक है, 4 का स्क्वायर होता नहीं ना, ये अंडर रूट उड़ जाएगा ना। अच्छा हाँ सर, मैंने अंडर रूट को सॉल्व ही नहीं किया, वैसे का वैसे ही रखा है। ठीक है, 4 का 2 बाहर नहीं निकाला, वैसे का वैसे ही रखा है, क्योंकि मेरा अंडर रूट उड़ ही रहा है, तो फालतू में क्यों सॉल्व करने का उसको। ठीक है, तो इसको स्क्वायर किया अगर मैंने, तो ये 5d² ऊपर चला गया 4, ये भाई साहब कितना है आपका? kq²/d² अपन निकाल चुके हैं, कितना है? नहीं तो अच्छा 4 की ये आपका f है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब ये पूरा मतलब f/5, है ना, f/5, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, दिस विल बी f/5। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, सो ठीक है, f/5 हो गया ये। ओके चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। ये दोनों भी सवाल किया था क्या हमने? इसमें एक ही सवाल था ना, कहीं तो 2 सवाल था, नहीं एक ही है इधर भी। चलिए भाई साहब, अच्छा ये वाला ये किया था ना अपन ने, ठीक है चलिए। चलो भाई साहब 2019 में आया हुआ सवाल है, जब आपके पूर्वज कोविड का फायदा उठा रहे थे, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये विदाउट कैलकुलेशन, नहीं कैलकुलेट करना ही नहीं है कुछ इसमें। क्या पूछा है यहाँ पे? अच्छा फाइंड द नेचर, हाँ नेचर, कैलकुलेट कुछ करना ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे क्या होगा? 3q और -q है, दो स्फीयर्स को आपने पास में लाया, टोटल चार्ज कितना हो गया? 2q। ये 2q दोनों में कद्दू कटेगा, दोनों में बटेगा, मतलब 1q का हो जाएगा।
अगर दोनों भी 1q के चार्ज हो गए तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन आप इसको शॉर्ट आंसर्स में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ द चार्जेस, सो व्हेन द चार्जेस आर बॉट टुगेदर, शॉर्ट आंसर है VSA, तो आपको लिखना पड़ेगा बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम विल बिकम 2q, ये आपको लिखना पड़ेगा, MCQ नहीं है। नाउ दिस 2q विल डिवाइड इक्वली बिटवीन द चार्ज बिटवीन द स्फीयर्स, बिकॉज ये कंडक्टिंग बॉल्स हैं एंड हैव चार्जेस, दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट, ये आइडेंटिकल हैं, इसीलिए ये भाई साहब सेम में बटेगा। अगर इनका साइज में डिफरेंस होता तो सेम चार्जेस में नहीं बढ़ता था, ठीक है। तो आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं एंड हेंस दे विल बेसिकली डिसिपेट इनटू 1q चार्ज ईच। ये 1q चार्ज दोनों में हो गया, तो इसमें बेसिकली अभी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव चार्ज हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। देन सेपरेट बाय डिस्टेंस g apart, फाइंड द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स, द नेचर ऑफ द कूलम्ब फोर्स विल बी रिपल्शन, ठीक है। Two equal balls having equal positive charge q coulombs are suspended by two insulating springs of equal length. What would be the effect of the force when a plastic sheet is inserted between the two? ये भी आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है भाई। ये देखो आपका ऐसे धागे से हमने दो इक्वल बॉल्स को सस्पेंड किया हुआ, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज आर सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द, तो अब होगा क्या, ऐसे होगा, ठीक है। आपने बीच में एक इंसुलेटिंग शीट डाल दी, अब क्या होगा, इंसुलेटर है, एक शीट डाल दिया आपने इंसुलेटर का, हाँ होमवर्क में भी ऐसे नहीं पूछते, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको मैंने होमवर्क में जितने भी क्वेश्चंस दिए वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और ये देखिए एनसीईआरटी कैसे रिपीट होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली को रिलेट कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप करेंगे ना तो आप अपने आप को सॉलिड बनाएंगे बोर्ड्स के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी, वहीं से आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये आप, लेकिन वो होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ओके। तो आपका देखो एज इन एयर आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, अभी मीडियम में क्या होगा, ये मीडियम डाल दिया है आपने बीच में, ठीक है, इंसुलेटिंग मीडियम डाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, जो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है, तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, F/K, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, और के की वैल्यू भाई साहब 1 से ज्यादा होती है इंसुलेटर्स के लिए, ठीक है। हेंस द फोर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, जब प्लास्टिक शीट नहीं था, ठीक है, जब प्लास्टिक शीट नहीं था तब आपका फोर्स कितना था, इतना, जब आपने प्लास्टिक शीट डाला तो फोर्स कितना हो जाएगा, इतना। एडिशन क्या हुआ यहाँ पे 4 बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि मीडियम क्या है आपका, एयर है, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के है, तुम्हारे बालों के सब वो चूना लग जाएगा, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भाई साहब के है यहाँ पे, ये क्या है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया तो एफ डैश F/K हो गया, ये समझ में आ रहा है। इतना पोर्शन तो भाई साहब ये देखो, इतना पोर्शन आपका जो है वो क्या है, F ही तो है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया F/K, और K की वैल्यू इंसुलेटर्स के लिए क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। हेंस फोर्स इज रिड्यूस, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो फोर्स आपका क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, ठीक है, व्हेन द प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस नहीं है, ठीक है। चलिए अगेन कोविड-19 का सवाल भाई साहब, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस Q ईच आर केप्ट 2 मीटर अपार्ट इन एयर, a third point charge Q of unknown magnitude and sign is placed on the line joining the charges such that the system remains in equilibrium, find the position and nature of the charge Q। देखो भाई साहब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, लेट्स से आपके भाई साहब यहाँ पे दो चार्जेस हैं, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस, और इनका वैल्यू कितना है भाई साहब, Q है, और ये भी भाई साहब आपका क्या है, Q है, ठीक है। अगर एक मिनट, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस है बच्चावाड़ी, देखो इन दोनों में क्या है, क्लैश है भाई साहब, ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे ही नहीं, इनको अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तुम बीच में कहीं पे एक चार्ज रख रहे हो, ठीक है। अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सच दैट द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे बीच में कहीं पे Q रख रहे हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। ये भाई साहब हस्बैंड वाइफ नहीं जम रहा है इनका, भाई साहब चिटक रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स को बुलाया गया तो कहीं जाकर वो एक इक्विलिब्रियम फैमिली की मेंटेन हो रही है, ऐसा समझ लीजिए। तो आप मुझे बताइए ये जो Q आएगा इसका साइन क्या होगा, विदाउट कैलकुलेशन बताइए।
नेगेटिव ही होगा भाई साहब, वो साइन इसका ऑपोजिट ही होगा, तभी तो ये दोनों को धर के रखेगा, है ना। ठीक है, सो लेट्स से हमने यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा है, ये क्यू चार्ज रखा है, लेट्स से फर्स्ट वाले से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, और आप ना विदाउट कैलकुलेशन भी बता सकते हो भाई साहब ये क्यू का साइन क्या होगा और कहां पे रहेगा, ये बता सकते हैं भाई साहब। हाँ वो 2 मीटर है, वो 2 मीटर है। x minus 2 नहीं, मुझे बताओ कहां पे होगा, ये सेंटर में होगा। विदाउट कैलकुलेशन आप बता सकते हो भाई साहब, कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है नो डाउट, लेकिन ये विदाउट कैलकुलेशन भी बता सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज होगा और सेंटर में होगा, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अभी इसको अगर तुमने x माना है तो ऑब्वियसली ये वाली कितनी हो जाएगी भाई साहब, वैल्यू आपकी 2 माइनस एक्स। अभी यहाँ पे इसका फोर्स और इसका फोर्स बैलेंस हो रहा है। ठीक है, सो अगर हम लिखते हैं यहाँ पे के क्यू इंटू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये सब कुछ मर गया है ना, ये क्यू भी मर गया भाई साहब आपका, तो आपका कितना हो गया बोलो, 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ हमने रूट ले लिया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, एक्स के बराबर, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 2x इज इक्वल टू 2, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 1, वही देखिए। ठीक है, और यहाँ पे नेचर ऑफ द चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला अट्रैक्ट मतलब ये वाला फोर्स इसकी तरफ अगर कभी होगा जब ये नेगेटिव हो, और ये वाला फोर्स। ठीक है, पोजीशन क्या हो गया भाई साहब, मिडिल में। ठीक है, और आपका चार्ज क्या हो जाएगा, दिस हैज टू बी अ नेगेटिव चार्ज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, सो द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज इज 1 मीटर फ्रॉम ईदर चार्ज, सो इट हैज टू बी फॉर चार्ज माइनस क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम द फोर्स एक्टिंग। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब ये क्यू नेगेटिव ही होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूँ। ठीक है, इसको विदाउट आप करने के बाद भी ऐसा ही आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक्चुअली मैथमेटिक्स से सॉल्व इसको नहीं करना था। खैर चलिए, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है 2021-22 का। ठीक है, assertion a negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field। ठीक है, तो आप समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, है कि नहीं। तो आपका भाई साहब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये हो गया आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, कहां से कहां तक, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और ये नेगेटिव चार्ज जो है वो किधर मूव हो रहा है भाई साहब, वेयर इज द नेगेटिव चार्ज मूविंग। ठीक है, a negative charge in an electric field moves along the direction of the electric field। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव हो रहा है। मतलब किधर मूव हो रहा है बच्चा पार्टी, देखो 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 देखो, थोड़ा दो। ठीक है, ये भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, अ नेगेटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है। ऑन अ नेगेटिव चार्ज अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज पे, ऑन अ नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किधर एक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भाई साहब, इस तरफ, और इस पे किस तरफ एक्ट करेगा फोर्स। चलो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस तरफ। अच्छा अभी इसको भूल जाओ, अभी फिर भी इस तरफ, तो क्या ये सही होगा, नहीं। तो नेगेटिव चार्ज पे तुम इसको भूल जाओ अगर, तो भी तुम्हारा फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ। इसको भूल जाओ तो भी तुम्हारा फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, इस तरफ, रिपल्सिव फोर्स। तो इसका मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज विल बी ऑपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये गलत है। ओके, असर्शन भी आपका फॉल्स ही है ना। फोर्स देखो असर्शन, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज पहली बार इस तरफ मूव करेगा ही नहीं। आप ये असर्शन में बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, लेकिन हो ही नहीं सकता। नेगेटिव चार्ज को अगर आपने छोड़ दिया तो वो उस तरफ ही मूव करेगा, बिकॉज द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेगेटिव चार्ज इज इन दैट डायरेक्शन। दोनों भी आपका फॉल्स है। ठीक है, असर्शन आपका फॉल्स है और रीजन भी आपका फॉल्स है। रीजन भी आपका फॉल्स क्यों, क्योंकि भाई साहब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ लग रहा है। नेगेटिव चार्ज मूव क्यों करेगा, क्योंकि उस पर एक फोर्स लगेगा, और ये फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो पहली बात तो ये बोलना कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है,
क्योंकि इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों गलत हो गया आपका। ठीक है, पहली बात, असर्शन में आप बोल रहे हो कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, इट इज रॉन्ग, एंड इज मूविंग ड्यू टू अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज आल्सो रॉन्ग। समझ में आ रहा है ये? तो असर्शन और रीजन आपका दोनों भी फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। ओके बच्चा भारी, जल्दी से इसको करनी है। चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट। चलिए भाई साहब हो गया क्या? अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस मच। कितने 2020 का क्वेश्चन है भाई साहब, ताजा ताजा एकदम, कोविड से बाहर निकले थे, फिर चले गए थे हम। 4 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये भाई साहब इन मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, एट टाइम t is equal to 0 द पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, हैविंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड E भाई साहब। ठीक है, ये न्यूटन पर कूलम में है। कितना है आपका 80I प्लस 60J। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ओके, तो देखो पार्टिकल ने क्या किया, पार्टिकल ने एंटर किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है भाई साहब, पार्टिकल का वेलोसिटी इतना है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है ना, 4I इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पार्टिकल में एक फोर्स क्रिएट होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? फोर्स कितना होगा बोलो? फोर्स विल बी इक्वल टू ई क्यू, है ना भाई साहब। ई और क्यू में स्केलर प्रोडक्ट है भाई साहब। कितना है ई? ई है आपका 80I कैप प्लस 60J कैप, और इसका क्यू कितना है भाई साहब 2, है ना, इंटू 2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कितना बोलो 160I कैप प्लस 120J कैप। ये हो गया फोर्स जो पार्टिकल पे लग रहा है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बोलो? सिंपल, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, सो दैट विल बी 160I कैप प्लस 120J कैप अपॉन मास कितना है भाई साहब 1। यार ये इसको तो चेंज करना पड़ेगा, 1.6 मीटर पर सेकंड है भाई साहब। इसको चेंज करना पड़ेगा आपको भाई साहब, 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन भाई साहब। दिस विल बी योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को भाई साहब ठीक से लिखेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 160 अपॉन यहाँ पे हो गया आपका 16 इंटू 10⁻⁻4 I कैप प्लस 120J कैप अपॉन 16 इंटू 10⁻⁻4। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया 10, ये है ना, एक को इधर कर लिया तो 10⁻⁻4 कर दिया मैंने। ठीक है, ये -3 kg हुआ ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 10 और 10⁻4, तो ये हो गया 10⁻5 I कैप। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? ये हो गया आपका 4 4 ज़ा 16, 4 30 ज़ा 4 7 ज़ा 28, और ये हो गया 4 5 ज़ा, तो ये हो गया आपका प्लस 7.5 इंटू 10⁻⁴, है ना, 10⁻⁴ J कैप हो गया। ये हो गया आपका J कैप। तो आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे ये हो गया। तो एक्सेलरेशन है आपका कितना 10⁻⁵ I कैप प्लस 7.5 इंटू 10⁻⁴ J कैप। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। मुझे बताओ ये जो वेलोसिटी है ये क्या परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन से इंपैक्ट हो पाएगी? नहीं, ये वेलोसिटी जो है ये सिर्फ इसी से इंपैक्ट हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t, तो v इज इक्वल टू क्या लगाओगे भाई साहब आप? u प्लस at। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे ये जो 4I कैप है यही इससे इन्फ्लुएंस होगा, ये एक्सेलरेशन ही इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये वाला एक्सेलरेशन इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अलग एक्सिस पे मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस पे है, परपेंडिकुलर एक्सिस पे इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा, परपेंडिकुलर एक्सिस पे एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो v इज इक्वल टू u प्लस at, मतलब आपका v का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 4I कैप प्लस a कितना है आपका 10⁻⁵ I कैप इंटू t कितना है आपका 5 सेकेंड्स है ना भाई साहब। ठीक है, 4I कैप प्लस
5 आई कैप, 4 आई कैप ही है ना यहाँ पे यार, कितना आंसर आया यहाँ पे? हैं? अच्छा पूरा ही ले लिया इन लोगों ने, ठीक है चलेगा। तो यहाँ पे भाई साहब आपका 4 आई कैप हो गया, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, यू कितना है आपका 4 आई कैप प्लस a कितना हो गया आपका 10 रेज टू 5, 10 रेज टू 5, यहाँ पे 10 रेज 100 इंटू राइज टू -3 कैसे हो गया? क्योंकि वो 375 हो जाएगा तो फिर उसको 0.375। नहीं यहाँ पे आपका q का वैल्यू कितना है? हाँ देखो गलत कर रहे हैं अपन, 2 माइक्रोकूलम है, ये होगा 10 रेज टू -6 ना भाई साहब, ये अपन भूल गए, ठीक है। ये माइक्रोकूलम होगा, इसको बाहर ही रखते हैं भाई साहब, पहले अपन इसको बाहर रखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 80, ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। तो आपका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा अपॉन मास, तो 80 आई कैप, 80 इंटू 2 हो गया भाई साहब 160 है ना, 160 इंटू 10 रेज टू -6 आई कैप प्लस 60 इंटू 12 120 इंटू 10 रेज टू -6 जे कैप। तो एक्सेलेरेशन विल बी अपॉन मास, मास इज हाउ मच 1.6 इंटू 10 रेज टू -3, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 10 रेज टू -4, 16 इंटू 10 रेज टू -4। इसको भाई साहब डिवाइड कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू -6 और -4, तो ये हो गया आपका -2, 10 इंटू 10 रेज टू -2 है ना, 100 इंटू 10 रेज टू -3 या 10 इंटू 10 रेज टू -2 सेम, ठीक है। आई कैप प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 16 और भाई साहब 120 बाई 16 4 7.5 आया ना, तो 7.5 आ गया भाई साहब इसका, ठीक है। 7.5 इंटू इसका भी कितना हो जाएगा 10 रेज टू -2 जे कैप, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका एक्सेलेरेशन। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा भाई साहब, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो v हो गया आपका u दैट इज 4 आई कैप प्लस 80 दैट इज 10 इंटू 10 रेज टू -2 आई कैप प्लस 7.5 इंटू 10 रेज टू -2 जे कैप, ठीक है, इंटू t दैट इज 5। फटाफट से इसको करते हैं भाई साहब, इतना कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 4 आई कैप प्लस 10 इंटू 10 रेज टू -2 इंटू 5, ये हो गया 50, नहीं -3 क्यों होगा 50 हाँ 5 इंटू 10 रेज टू -1 हो जाएगा ना, ये कितना हो गया 10 रेज टू -1, 5 इंटू 10 रेज टू -1, तो ये हो गया 0.5 आई कैप। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 7.5 इंटू 5, 5 5 25 7 5 37.5, तो ये हो गया 0.375 जे कैप। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप, ठीक है। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी, दिस विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, ये सवाल आपका इंतजार कर रहा है, जल्दी से इसको करके निपटा दीजिए। 2 point charges 1 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart. How far from the 1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will the net electric field be 0? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 कहां पे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, तो हो गया ना, हाँ Q1 into Q2 डिवाइड, नहीं वो तो फोर्स हो गया, नहीं अरे तुम लोग कंफ्यूज क्यों रहे, देखो भाई साहब इसको याद रखो, फोर्स इज इक्वल टू होता है E इंटू क्यू, तो भाई साहब आपका फोर्स अपॉन क्यू क्या हो जाएगा E, तो आपका एक क्यू मर गया ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यहाँ पे जो 2 क्यू दिख रहा था उसके जगह पे 1 क्यू रहेगा, क्योंकि क्यू और क्यू मर जाएगा। सिंपल चीजें को याद रखो, अगर फॉर्मूला से याद रखना है, ठीक है।
ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है, दो चार्जेस हैं आपके, एक चार्ज है आपका कितने का 1 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज कितना है भाई साहब 4 माइक्रोकूलम का। दोनों को अपन ने कितने दूर रखा है, दोनों को अपन ने रखा है भाई साहब 30 सेंटीमीटर अपार्ट, बोथ आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ फार फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज, तो हमने ये डिस्टेंस लेट से ले लिया भाई साहब x, ये वाला डिस्टेंस ले लिया आपका x, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 30 माइनस एक्स, सो दिस विल बी हाउ मच 30 माइनस एक्स, ठीक है। ऑन द लाइन जॉइन द टू चार्जेस विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो, तो आपका इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहला वाला हम ले लेते हैं, मतलब 1 बाई द के क्यू दैट इज के इंटू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो कट ही हो जाएगा ऊपर का। एक मिनट रुक जा, हाँ k इंटू 4, यहाँ पे माइक्रोकूलम है, माइक्रोकूलम है, k इंटू 4 माइक्रोकूलम अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो आइडियली में हमको इसको मीटर में लेना चाहिए, लेकिन अगर हमने सेंटीमीटर में भी लिया तो एक दूसरे से कट हो जाएगा ये, और यहाँ पे हमको आइडियली में कूलम में लेना चाहिए, लेकिन माइक्रोकूलम में लिया तो भी कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों भाई साहब आपका सब कैंसिल हो गया, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, सो दैट विल बी 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, 2x इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 30, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10, ठीक है। सो एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द 1 माइक्रोकूलम चार्ज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। इसमें लॉन्ग आंसर का कुछ तो दिख नहीं रहा है मुझे, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट फटाफट, डेरिवेशन है देखो, क्या 1/2 एक थिन सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस r इज चार्ज यूनिफॉर्मली सो दैट इट्स लीनियर चार्ज डेंसिटी बिकम्स लैम्डा, ठीक है। तो एक रिंग है भाई साहब, अरे क्या हो रहा है, ये एक रिंग है, ठीक है, और इस पूरे रिंग में आपने कितना चार्ज डाला हुआ है लैम्डा, ठीक है, ओके। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मतलब क्या हो गया भाई साहब आपका, ये 2 पाई आर में लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब आपका लैम्डा है, मतलब जितना चार्ज आपने डाला है लेट्स से q बाई 2 पाई आर, टोटल चार्ज q बाई 2 पाई आर, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। क्या ये लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, q बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा, ये है आपका, ठीक है, ओके। अभी समझ लीजिए अलोंग दी एक्सिस, तो आपको भाई साहब अलोंग दी एक्सिस मतलब आपने इसके एक्सिस पे कोई डिस्टेंस पे आपने एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, सो ये भाई साहब आपका डिस्टेंस कितना है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, हम पीपल हम x, ठीक है, ये आपका x है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग, हेंस प्रूव दैट लार्ज डिस्टेंसेस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अपन ने समझ लो मान लिया कि यहाँ पे एक dx एलिमेंट है, ठीक है, dx एलिमेंट है, इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा पार्टी कैसा हो जाएगा, ये हो गया भाई साहब, ठीक है। और इसको अपन अगर समझ लो DE लेते हैं, dx की वजह से कितना हो रहा है, एक एलिमेंटल स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन dx की वजह से DE हो रहा है, मैं ये सब लिख नहीं रहा हूं, यह सब आपको लिखना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन ऑफ द रिंग dx बिकॉज ऑफ विच द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज लेट्स से DE, ठीक है। अभी अगर समझ लो ये आपका होता है थीटा, ठीक है, ये अगर आपका होता है भाई साहब थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, दिस विल ऑल्सो बी थीटा, ठीक है, ये भी थीटा हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट निकाल लो भाई साहब, ठीक है। DE का क्या ही अचार हम डालेंगे, लेकिन इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे तो सवाल सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपका DE cos थीटा और ये हो गया आपका भाई साहब DE sin थीटा। अभी देखो ऊपर नीचे साइडवेज जहां भी जाओ आपका
इसका एक कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट यहां पे रहेगा जिसका क्या होगा, ऐसे जाएगा, और डी साइन थीटा जिसका ऊपर की तरफ रहेगा, और डी कॉस थीटा। तो सारे डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। डी साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो टोटल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, डीई विल बी इक्वल टू डीई कॉस थीटा, सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, अभी अपन इसका करेंगे इंटीग्रेशन। ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो डीई इज इक्वल टू, डीई मतलब यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स, ठीक है। और ये लेट से हो गया आपका सर्कल, अच्छा इसका रेडियस दिया हुआ है ना आपको आर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ई हो गया, ठीक है। डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्या है भाई साहब, क्यू, डी एक्स का चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू, समझ लिया dx का चार्ज है डी क्यू, लेकिन इस डी क्यू को अपन, तो यहाँ पे कितना होगा भाई साहब, डी क्यू अपॉन भाई साहब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटीग्रेशन, कॉस थीटा है भाई साहब, कॉस थीटा, ठीक है, याद रखिएगा। लिमिट्स क्या हो जाएंगी भाई साहब आपकी, लिमिट्स कहां से कहां तक होंगी, ये जो आपका भाई साहब डी क्यू है, कॉस थीटा है, ये मतलब लिमिट कहां से कहां तक होगा डी क्यू का, पूरा का इंटीग्रेशन करेंगे, अगर आप पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा होगा, -π/2 से, नहीं, ये आपका भाई साहब 3 डायमेंशनल है। क्या, यहाँ पे पहले इसको डी क्यू को देखते हैं पहले हम, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे जब आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, मतलब जब 1 यूनिट चार्ज है, जब 1 यूनिट को आपने लिया है तो कितना हो गया, लैम्डा, ठीक है। तो आपने dx लेंथ को लिया हुआ है, 1 यूनिट लेंथ को लिया तो लैम्डा हुआ, dx लेंथ को लिया तो कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, और यही है आपका dq, ठीक है। तो इस चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह पे क्या लिखेंगे, लैम्डा dx, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अभी इस cos थीटा को निपटाना है अपने को। cos थीटा क्या हो जाएगा बोलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो दैट विल बी हाउ मच, x अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस इज x और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यही होगा ना भाई साहब, अंडर रूट है ना, अंडर रूट में, तो दिस विल बी, ठीक है। तो पहले इसको निपटाते हैं भाई साहब, डी क्यू, तो ये हो गया आपका कितना, लैम्डा एक्स डी एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 3/2 है ना, 3/2, क्लियर है। इसको अगर हम ऐड करते जाएंगे भाई साहब, क्योंकि डी कॉस थीटा लैम्डा एक्स डी एल 1/, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया, आर का एक्स एल कैसे हो गया भाई साहब, ओके। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे इस्तेमाल करना है, देखो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसका अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स को ऐड करते जा रहे हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या कांस्टेंट होगा आपका, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर आएगा। मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना भाई साहब। आप ऐसे घूम रहे हो ना, ये गोला ही है, ये गोला है, इससे ये वाला पॉइंट
कोई भी पॉइंट उठा लो, वही सेम डिस्टेंस होगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये गोला है ना भाई साहब, इस गोले का भाई साहब ये ले रहे हो, इस पॉइंट का हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, सो हेंस वी विल थ्रो दिस आउट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट रेज टू 3/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा भी बाहर आएगा भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, एक्स डी एक्स, ठीक है। इस एक्स डी एक्स को अगर आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, छोटे छोटे ऐसे पोर्शंस को अगर आप ऐड करते रहेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, दिस विल बी 2 पाई आर हो जाएगा ना भाई साहब। देखो इस छोटे छोटे कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड करते रहे, सो व्हाट विल दिस बी, दिस विल बी 2 पाई आर और एल भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो दैट विल बी 2 पाई आर और ये हो गया भाई साहब अपन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये हो गया 3/2। अभी व्हेन x इज 2 ग्रेटर देन r तो इसको अपन वी कैन इग्नोर दिस, सो दिस विल बी 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो गया भाई साहब x का क्यूब, ठीक है। दिस विल बी बेसिक, सो द रिंग बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज, मतलब ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। एक पूरे रिंग को अपन पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज से जितना डिस्टेंस होता है उतना ही भाई साहब आपका यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली इक्वल टू दैट ओनली, ठीक है। ओके ओके ओके, तो लंबा चौड़ा है भाई साहब, इसको अपन कल निपटाएंगे। ठीक है। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस q1 q2 qn with position vectors r1 r2 r3 rn related to some origin o. Deduce the expression for the net electric field at a point p with its position vector rp due to its system of charges. तो पहले तो बात पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होती है, बताओ पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होती है। देखो यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है बेसिकली, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लिया आपने, ठीक है, और एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है लेट्स से q1 q2 q3। तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, इतना दूर कहाँ से गिर गया भाई साहब। हाँ, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, बच्चा पार्टी बोलो जल्दी 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 फटाफट बताना है। पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी, ये भाई साहब वेक्टर्स में पढ़े हो, एनीवन बोलो। ओरिजिन से, टेढ़ा मेरा लाइन क्यों बनता है यार, ओरिजिन से एक पॉइंट का जो पोजीशन होता है जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो वो पोजीशन वेक्टर होता है। तो समझ लो यहाँ पे चार्ज है आपका q1 है ना, ये चार्ज है आपका q1, ये इसका पॉइंट है। इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ, ठीक है, इसको अगर मैं कनेक्ट करूँ इस ओरिजिन से बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा क्या, r1। r1 मतलब समझ में आता है, देखो इसका कोऑर्डिनेट माइनस इसका कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है, चाहे वो XYZ हो चाहे XY प्लेन हो, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ये जो r1 हो गया, इसको बोलेंगे अपन पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया r1। इसी तरह से भाई साहब कहीं पे आपका q2 है, ठीक है, q2 है भाई साहब, इसका हो गया लेट्स से पोजीशन वेक्टर r2, ये हो गया भाई साहब आपका पोजीशन वेक्टर r2, ठीक है। इसी तरह से भाई साहब आपका लेट्स से है qn, ऐसा चलता रहेगा भाई साहब, qn बहुत सारे हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके चलते जाएंगे, चलते 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 भाई साहब ऐसे चलते चलते हम आ गए qn पे, ठीक है, एंड इट कैन बी एट एनी डिस्टेंस। तो ये हो गया भाई साहब लेट्स से qn चार्ज हो गया, और qn भाई साहब कितने पोजीशन वेक्टर पे है, rn। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ओके। रिलेटेड टू सम ओरिजिन o, तो ये आपका भाई साहब ओरिजिन o है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p। अभी हम कोई पॉइंट p की बात कर रहे हैं, लेट्स से ये पॉइंट p है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है भाई साहब, मतलब इस ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया भाई साहब आपका rp, ठीक है, ये rp है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन सब तमाम चार्जेस की वजह से,
समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, तो अपन पहले एक को लेते हैं यहाँ पे Q1, समझ लो Q1 कितने पे है पोजीशन वेक्टर R1 पे, और ये कितने पे है भाई साहब RP पे। आपका बताओ Q1 का डिस्टेंस यहाँ से कितने का होगा? बोलो ना, बोलो बोलो, कोशिश तो करो भाई साहब। ये कितना हो जाएगा बोलो? अरे जल्दी बोलो भाई साहब। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? RP, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R1, तो क्या हो जाएगा बोलो? R1 माइनस RP की RP माइनस R1? RP माइनस R1 हो गया ना, यहां से इधर जा रहे हो तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो? RP माइनस R1। और क्योंकि आप पोजीशन वेक्टर ले रहे हो तो आप इसको मॉड में ले लो, ये नेगेटिव भी हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, यू नेवर नो। ये P इधर भी हो सकता है ना भाई साहब, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या ले रहे हैं? इसका मॉड वैल्यू ले रहे हैं। ये हमारा हो गया भाई साहब डिस्टेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो एक पॉइंट, एक चार्ज का एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अगर आपको डिस्टेंस मालूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? लेट्स से हम यहाँ पे Q1 चार्ज की बात कर रहे हैं एट अ डिस्टेंस पॉइंट P। ये क्या हो जाएगा बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R का स्क्वायर। कौन सा R का स्क्वायर? इस वाले R का स्क्वायर, ठीक है। तो RP माइनस R1 इसका भाई साहब स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये समझ में आ रहा है? इसी तरह से भाई साहब आपका EQ2 भी होगा इसी तरह से ही। तो इस तरह से अपन जाते रहेंगे भाई साहब कहाँ तक? EQN तक, विच विल बी वॉट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट गिव्स यू QN अपॉन अपॉन अपॉन, बोलो भाई साहब बॉयज। नहीं, RP माइनस RN है ना, लिख सकते हो दोनों भी, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्वायर ही कर रहे हो तुम, तो स्क्वायर का क्या मतलब? अंदर नेगेटिव भी होगा तो आंसर तो पॉजिटिव भी आएगा, है ना। तो किसी को भी आगे कर सकते हो, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो आप बताइए भाई साहब इनको क्या करना है? हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई साहब? सुपर इम्पोज होती है, मतलब सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐड करोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी हाउ मच ऑफ पीपल आर, इसमें से 1 बाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल, ये कितना हो जाएगा बोलो? 1 बाई, चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, चलिए। लेकिन आपका यहाँ पे ये कैसे होगा? व्हाट विल दिस बी? ओके, हाँ, समेशन अगर हम करेंगे तो कैसा होगा? देखो, हाँ चलो कर लेते हैं, पहले अपन ऐसा करते हैं, Q1 बाई RP माइनस R1 इसका स्क्वायर प्लस Q2 अपॉन RP माइनस R2 इसका स्क्वायर। ऐसा करते 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 वैसे जाएंगे QN RP माइनस RN इसका स्क्वायर। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी? ठीक है। इसको अगर मेरे को एक झटके में लिखना हो तो कैसे लिखें? ओके, तो समेशन मतलब समझते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे समेशन क्या है? Q अपॉन RP तो रहेगा आपका, माइनस RI लिख दो भाई साहब, और यहाँ पे लिख दो I, ठीक है। 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, ये इसका स्क्वायर। और ये I की वैल्यू कहाँ से भाई साहब? I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू N तक। क्या ये समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू विल बेसिकली रिप्रेजेंट द टोटल इलेक्ट्रिका फील्ड। समझ में आता भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, आर वी क्लियर? ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा डायग्राम बनाकर ऐसे दिखाना, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ के हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा भाई साहब? दिस विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट I1 से लेकर N तक, देखो Q1 RIP का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, बेसिकली RPI ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। RPI का स्क्वायर मतलब देखो क्या है? RP माइनस RI क्या हो जाएगा? RPI हो जाएगा ना। देखो आप वेक्टर कुछ लिखते हो, अगर आप जैसे अगर वेक्टर आप AB लिखते हो तो इसका मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होता है ना। वही चीज़ है यहाँ पे RP। आप इस तरह से भी आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। दोनों भी आंसर्स आपके एक्सेप्टेबल हैं। दिस एज वेल एज द आंसर गिवन हियर, बोथ आर एक्सेप्टेबल। आर वी क्लियर? हाँ, यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया है, मैंने एक चीज़ जो इंक्लूड नहीं की है वो है इसका पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर। और ये यूनिट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक होगा भाई साहब? P से I तक, ठीक है। यूनिट वेक्टर P से I तक। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। टू 2019 के क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज माइनस Q इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। ठीक है, एक भाई साहब अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है
अनचार्ज प्लेट है, अनचार्ज प्लेट है मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, समझ में आता है भाई साहब, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। व्हेन अ पॉइंट चार्ज, और यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, एक पॉइंट चार्ज को रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है -q, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे भाई साहब, इसकी तरफ होंगे कि इससे, नहीं इसकी तरफ होंगे, माइनस है उसकी तरफ होगी। तो ऐसे दिखा रहा है, इसकी तरफ होंगे ना, ऐसे होगा। हाँ तो ये माइनस है ना, प्लस होगा तो इधर जाएगा, माइनस होगा तो इसकी तरफ आएगा ना। बट वो तो अनचार्ज है तो उधर मतलब। हाँ लेकिन उसको जाने दो, इसको जाने दो, इसको अभी नहीं भी कंसीडर करोगे तो तुम्हारा जो भी पॉइंट चार्ज होगा ना चाचू, उसमें क्या होगा, ऐसे आएगा ना सब, हाँ ये ऐसा आएगा ना, वो छोड़ दो, वो जान दो। अभी हमने वहाँ पे रख दिया फील्ड, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम्हारा ये तो ऐसे ही होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट, ये हो गया। ओके, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन अ पॉइंट चार्ज +q, अगर भाई साहब +q रखा और यहाँ पे अगर अनचार्ज प्लेट रखा तो उस तरफ है, समझ में आ रहा है ये। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लेट्स से आपका पॉइंट चार्ज हो गया तो ये इस तरफ है, ठीक है। वाई डू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, ये क्लोज लूप्स क्यों नहीं बनाते हैं, वाई डोंट दे फॉर्म क्लोज लूप्स, बोलिए भाई साहब क्यों नहीं होगा ये क्लोज लूप्स। हाँ क्या क्या बोलियो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, बट क्यों नहीं करते? हाँ मतलब नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर जो है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है, दैट्स द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। जो तुम्हारा जो रिपल्शन होता है वो इसी चीज़ के वजह से होता है, ठीक है। ओके, तो अच्छा हाँ मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाना भूल गया भाई साहब, यहाँ पे माइनस होगा ना तो इधर आपके चार्ज प्लेट में, अरे कंडक्टिंग है ना ये, सॉरी कंडक्टिंग है तो इसमें चार्जेस डेवलप होंगे, सॉरी यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा डेवलप, और ऑब्वियसली ऑपोजिट एंड में क्या डेवलप हो जाएगा, माइनस, सॉरी आई फॉरगॉट दिस, यहाँ पे माइनस होगा और ऑपोजिट एंड में क्या हो जाएगा भाई साहब आपका प्लस, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव नेचर, यहाँ पे भाई साहब आपका क्या है, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इनका कंजर्वेटिव नेचर होता है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। ओके तो जैसा आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, अगर क्रॉस कर गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, वही सेम यहाँ पे। वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइंस देयर विल बी टू डायरेक्शंस, और इसलिए आपका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता, ये मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर ऑल्सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, तो क्रॉस ईच अदर नहीं होगा क्योंकि अगर क्रॉस ईच अदर हो रहा होगा तो दो डायरेक्शन हो जाएगा और ये पॉसिबल नहीं है। और क्लोज लूप क्यों नहीं बना रहा है, बिकॉज उनका कंजर्वेटिव नेचर होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू फील्ड लाइंस देयर विल बी टू डायरेक्शंस फॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है, एक ही डायरेक्शन हो पाएगा। ओके अगेन यहाँ पे देखो वही पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इसका क्या दिखाएंगे, तो दैट इज द सेम थिंग दैट हैज बीन रिपीटेड हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके 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 चलिए भाई साहब इसको करना है तो करना है भाई साहब। ये आपका MCQ कौन से ईयर में आया पता नहीं, शायद 2019 का है, ये एक और है भाई साहब। चलिए फटाफट से इसको करना है, क्विक 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 एवरीवन। हो गया, डन डन डन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो 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 जल्दी। अरे नहीं यार वो नहीं, हाँ E इंटू डी एस मतलब आपका एरिया वेक्टर है ना, तो मतलब ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर E इंटू डी एस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल बन रहा है, ठीक है। ओके अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए इज लाइंग पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो आपका भाई साहब एक्स वाई प्लेन है, लेट्स से आपका ये है, ये आपका स्क्वायर शीट है विच इज़ लाइंग ऑन एन एक्स वाई प्लेन, ये आपका स्क्वायर शीट है एक्स वाई प्लेन पे, ठीक है। अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड ए, तो ये हो गया भाई साहब आपका साइड ए, ठीक है, लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स और वाई प्लेन, ठीक है, यहाँ पे लाई कर रहा है, इस पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन,
हैं एक्स वाई प्लेन एंड जेड इज इक्वल टू ए, स्क्वायर शीट ऑफ ए इज लाइंग इन एक्स, जेड इज इक्वल टू ए क्या है भाई साहब? तो उससे क्या ही हो जाएगा? लेकिन जेड क्या है? मुझे लगता है कंफ्यूज करने के लिए द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज ओके, तो मतलब 3 डायमेंशनल है एक्चुअली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आप इसको z एक्सिस को ले लीजिए, ठीक है। ओके, z की वैल्यू भाई साहब कितनी दी हुई है आपको? a, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? k कैप में है, मतलब ऐसे नॉर्मल है, समझ में आ रहा है? ये इस तरफ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल है, समझ में आ रहा है? तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? आई कनिष्क का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्स वाई प्लेन पे है, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? ऐसा है ना, हमेशा ऐसा ही एरिया वेक्टर, ऐसे ताश के पत्तों को इमेजिन किया करो, ऐसे जैसे खोलते हो ना ताश के पत्ते वैसे ही है। तो ये ऐसे इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है, तो जीरो हो गया। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है भाई साहब आपका क्या? फ्लक्स होता है भाई साहब ई ए कॉस थीटा या ई डी एस, जो भी आप लिखना चाहें, बेसिकली एरिया वेक्टर कॉस थीटा, है ना। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे? सी जेड स्क्वायर, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? एरिया वेक्टर कितना हो गया? ए स्क्वायर ना, ए का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका फ्लक्स। जेड की वैल्यू कितनी है? जेड की वैल्यू ए है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ये कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो हो जाएगा यहाँ पे, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 1, सो दिस विल बी सी ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दैट विल बी सी ए रेज टू 4। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द शीट विल बी सी ए रेज टू 4। देखते हैं भाई साहब आंसर कितना है? ए रेज टू 4c, ठीक है, क्लियर है? ए रेज टू 4c आया आंसर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? स्क्वायर कैसा है? क्या क्या? जेड स्क्वायर दिया हुआ ना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका एरिया ना, देखो इसका एरिया कितना है? ए इंटू ए स्क्वायर। अभी एरिया का वेक्टर ऐसे आ रहा बाहर, तो ए स्क्वायर ही हो गया ना वो। देखो ये शीट है, ए है, अच्छा तो ये एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है ना, एरिया का वेक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब? एरिया का वेक्टर और इसके में एरिया का वेक्टर के डायरेक्शन में ही होगा ना, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? के डायरेक्शन में है, के कैप है, मतलब किस डायरेक्शन में है? जेड के डायरेक्शन में है। और एरिया वेक्टर भी किस डायरेक्शन में रहेगा? के कैप में ही रहेगा, समझ में आ रहा है ये? अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख सकते हैं, देखो एरिया वेक्टर को अपन क्या लिख सकते हैं? एरिया वेक्टर अगर मैं लिख रहा हूं तो दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर के कैप, ऐसा लिख सकते हो भाई साहब, ठीक है? ए स्क्वायर के कैप लिख सकते हो। अभी कर लो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो, फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू ए, स्केलर प्रोडक्ट ना भाई साहब। तो ई की वैल्यू क्या है बोलो? सी जेड स्क्वायर के कैप इंटू ए की वैल्यू क्या हो गई बोला? ए स्क्वायर के कैप, के कैप भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, मतलब कॉस की जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी जेड स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी भाई साहब जेड की वैल्यू क्या है? ए है, तो आपका हो जाएगा सी ए रेज टू 4। ये ऐसे जब हाँ के कैप और के कैप की जगह आई कैप है, फिर जे कैप होता तो फिर तो जीरो हो जाता था, समझ में आ रहा है? कॉस 90 हो जाता था, जीरो हो जाता था, स्केलर प्रोडक्ट आपका जीरो हो जाता था, ठीक है, पूरा जीरो हो जाता। पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। आर वी क्लियर? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। An electric field along the x axis is given as this, obviously I कैप रहेगा, for x greater than 0, x की वैल्यू भाई साहब greater than 0 है, मतलब आपका राइट हैंड साइड में ही रहेगा, ठीक है। एंड E इज इक्वल टू दिस फॉर x लेस देन 0, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी है इस तरफ भी है, ठीक है, ओके। A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm lies parallel to the x-axis with its center at the origin and one face at x is equal to 10 cm and the other face as x is equal to minus 10 cm. Calculate the net outward flux through the cylinder. चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, easy है easy। क्या है भाई साहब आपका x एक्सिस हो गया और ये हो गया लेट्स से आपका y एक्सिस। सो दिस इज बेसिकली योर वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना है? इधर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 100 न्यूटन, तो आपका इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? इस डायरेक्शन में है भाई साहब 100 आई कैप न्यूटन पर कूलम है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई साहब कितना है? -100 आई कैप
न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस में ये है, ठीक है, ओके। फॉर एक्स लेस देन 0, तो ऑब्वियसली एक्स लेस देन 0 इस तरफ होगा, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 इस तरफ होगा, ठीक है। और आपका सिलेंडर कैसा प्लेस्ड है भाई साहब, सिलेंडर बाबा, अरे सिलेंडर कहाँ गया, अरे ये हो गया आपका सिलेंडर, हाँ मालूम है, अब हम इसको थोड़ा सा निपटा रहे हैं। तो ये हो गया भाई साहब आपका सिलेंडर, ठीक है, दिस इज बेसिकली द सिलेंडर, ओके। अभी ये सिलेंडर का क्यों नहीं हो रहा है बट, ठीक है, ये हो गया आपका सिलेंडर। और इसका इधर कितना है भाई साहब, इधर है आपका सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, लेंथ इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, लाइस पैल ओरिजिन एक्स +10 और -10, ठीक है भाई साहब। चलिए, तो इधर हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20। तो ये हो गया भाई साहब आपका 20 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो इस तरफ आपका कितना होता है बच्चा पार्टी, इस तरफ हो जाता है आपका 10 सेंटीमीटर, और इस तरफ हो जाता है आपका कितना, दिस विल बी 10 सेंटीमीटर। इस तरफ हो गया भाई साहब कितना आपका 10 सेंटीमीटर, इधर 10, इधर आपका हो गया 10, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो इधर का रेडियस आपका हो गया भाई साहब 5 सेंटीमीटर। सो ये हो गया आपका भाई साहब 5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है बोलो, ठीक है। अगर आप इस एरिया को देख रहे हैं, 3 एरियाज हो गए, एक एरिया वेक्टर इस तरफ, एक एरिया वेक्टर इस तरफ, और एक एरिया वेक्टर इस तरफ, ठीक है। ये वाला जो एरिया वेक्टर है, समझ लो यहाँ पे अगर आपने एरिया वेक्टर लिया, तो ये वाला एरिया वेक्टर किस तरफ है भाई साहब, इस तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है भाई साहब आपका, इस तरफ है, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, तो दिस विल बी व्हाट, cos 90 हो जाएगा, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, ओके। तो फ्लक्स, लेट्स से फ्लक्स हम 1 लिख रहे हैं, लेट्स से दिस इज बेसिकली फ्लक्स बिटवीन फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपका कर्व सरफेस एरिया CSA इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। CSA आपका पूरा चारों तरफ ही देखो, इधर भी आओगे तो भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किधर मिल रहा है, इधर, और एरिया वेक्टर इधर है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 0। φ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या ये समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम आते हैं φ2 पे। φ2 लेट से ये हो गया आपका φ2 है, ठीक है, ये φ2 है, और लेट से ये हो गया आपका φ3, ठीक है। φ2 की वैल्यू बोलो कितनी हो जाएगी, E × A, और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका cos ऑफ 0, है ना, दोनों के बीच में E यहाँ पे कितना है -100 I कैप × A कितना हो जाएगा बोलो, πr², ठीक है, πr², दैट विल बी हाउ मच, 3.14 × r, πr² लिख देते हैं भाई साहब, πr² मतलब कितना हो गया 25, है ना, तो पाई × 25 × 10⁻⁻⁴, है ना, 25 × 10⁻⁻⁴, 25 सेंटीमीटर है ना, मीटर में कर लिया हमने उसको, 10⁻², तो 10⁻⁴ हो गया, सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर किया ना, 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हुआ 25 × 10⁻⁴, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच, 25 × 10⁻², आई कैप कैंसिल हो गया, है ना, ये भी आई कैप में ही है ना, तो ये कैंसिल हो गया। सो दिस इज द फ्लक्स, ठीक है, दिस इज द फ्लक्स E × न्यूटन किलोमीटर, ठीक है। ये फ्लक्स हो गया भाई साहब आपका φ2 का, हाँ पाई, ठीक है। और दूसरी तरफ फ्लक्स क्या होगा भाई साहब, φ3 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी,
25 इंटू 10⁻², ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया भाई साहब आपका, बताओ। टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, दैट विल बी φ10 प्लस φ2 माइनस 25 इंटू 10⁻² पाई प्लस 25 इंटू 10⁻² पाई, सो दिस विल बी ऑब्वियसली 0, टोटल फ्लक्स विल बी 0, ठीक है। ये 0 नहीं होता था अगर यहाँ पे आपका ये प्लस में होता था, एक ही डायरेक्शन में अगर होता था तो ये 0 नहीं होता था, ठीक है। यहाँ पे माइनस है बोल के ये 0 हो रहा है, ओके। सो आपका ठीक है, मैंने गलती की है यहाँ पे, ओके। देखो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दी हुई है, ऐसे है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इस डायरेक्शन में ले रहे हो तो ये पॉजिटिव है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को, मतलब आप क्या बोल रहे हो कि अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 I कैप, ये है ना, समझ में आ रहा है, -100 I कैप है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर आप इस डायरेक्शन में लोगे तो क्या होगा, प्लस 100 I कैप, ओके। जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये अगर हमने इधर लिया देखो तो ये माइनस होगा, अगर हमने इधर लिया तो क्या हो जाएगा, ये 100 I कैप प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए भाई साहब ये वाला φ2 क्या हो जाएगा, ये 100 I कैप प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए टोटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी 25 प्लस 25, दैट विल बी 50 इंटू पाई इंटू 10⁻², सो दैट इज हाउ मच, 50 इंटू 3.14, तो आपका हो जाएगा भाई साहब 4 5 20, 5 1 5 6 7 3 5 15, तो ये हो गया आपका 1570 इंटू 10⁻² दैट गिव्स यू हाउ मच, ये नहीं 1.57 नहीं आएगा, 15.7 आ जाएगा ना, हाँ 10⁻⁴ होगा ये, 10⁻⁴, तो 0.05 का स्क्वायर हुआ ना ये, मतलब आपका हुआ यहाँ पे दिस इज इक्वल टू ये हो गया आपका 0 प्लस आपका यहाँ पे हो गया 100, तो ये हो गया 200 इंटू भाई साहब पाई, ठीक है, पाई और ये हो गया r का स्क्वायर, तो दैट विल बी 3.14 इंटू 25 इंटू 10⁻², ठीक है, -4। तो यहाँ पे होता है आपका, इसको मल्टीप्लाई कीजिए जरा, 25 इंटू 3.14 इंटू 2 या 6.28 इंटू 25 कर दीजिए, चलिए फटाफट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, इंटू 10⁻² हो जाएगा ना, इसका -4 और इसका 2 है ना, तो ये हो गया 10⁻², कितना आ रहा है भाई साहब जल्दी बताइए, 1570 आ रहा है, और ये -2 है, तो 1 2, ये तो 15.7 आ रहा है यार, नहीं 1.55 है, 157 ही है, तो फिर वो -2 तो 157 आ रहा है, हाँ। ओके चलिए 157 आ रहा है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 157 आ रहा है, पॉइंट इसके बाद आ रहा है ना, ठीक है। तो चलिए इंटू 10⁻², तो ये हो गया आपका 1.57, ठीक है, क्लियर है। दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हमारा पिछली बार जो सवाल में था वो ये था कि यहाँ पे ई क्या दिया हुआ है ये, और दूसरा ई क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तुम दोनों ई को अगर इधर मानोगे तो तुम्हारा देखो एरिया वेक्टर, एक का एरिया वेक्टर तुमको ऐसे मानना पड़ेगा ना,
और दूसरे का एरिया वेक्टर ऐसे मानना पड़ेगा, ठीक है। सिलेंडर है भाई साहब, सिलेंडर का एक का एरिया वेक्टर तुमने ऐसे माना है तो दूसरे का एरिया वेक्टर ऐसे मानना पड़ेगा। तो एक का इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने ऐसे माना है तो दूसरे का भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसा ही मानो ना। या अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही मान रहे हो जैसा दिया हुआ है, ठीक है, तो अब बताओ मुझे, अगर समझ लो मैंने यही माना इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल हो जाएगा 180, तो तुमको cos 180 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो तुम्हारा पॉजिटिव होना ही होना है। या तो तुम भाई साहब क्या करो, इसका माइनस का प्लस कर लो इंटू एरिया वेक्टर करो, और या तो तुम क्या करो EA cos 180 करो, cos 180 करोगे तो भी तुम्हारा प्लस आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, तो द ट्रिकी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज दिस पार्ट। इसको अगर हमने इसी तरफ ले लिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका एरिया वेक्टर इस तरफ है और इसके बीच में कितना हो गया 180 का हो गया। 180 cos 180 इज -1, दैट विल गिव यू पॉजिटिव 25 इंटू 10⁻⁴ पाई। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। ये तो इजी क्वेश्चन लग रहा है भाई साहब। डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड? जल्दी जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मल एरिया, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कितना हो जाएगा भाई साहब? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। देखो अगर याद नहीं भी आ रहा है तो भी आप ऐसा लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? E इंटू ए, है ना। E की वैल्यू क्या होती है बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो बोलो बोलो। न्यूटन पर कूलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, न्यूटन पर कूलम होता है। क्यों? आप देखो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू E इंटू क्यू होता है ना। तो अगर E की वैल्यू लेंगे अपन तो फोर्स अपॉन कूलम होगा, फोर्स की न्यूटन और इसका कूलम, तो न्यूटन पर कूलम होगा। और एरिया क्या है आपका? मीटर स्क्वायर है, तो ये आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। इन केस यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट्स हेल्ड नॉर्मल टू E? तो नॉर्मल मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने स्क्वायर को नॉर्मल रखा है, तो स्क्वायर का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया वेक्टर में कितना होगा? 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और स्क्वायर के एरिया वेक्टर में क्या हो जाएगा? 0। तो आपका भाई साहब फ्लक्स कितना हो जाएगा? EA cos 0, ठीक है। तो E की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 3 इंटू 10⁻³ आई कैप, ठीक है, इंटू A की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 इंटू 10⁻² हो गया। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया 10⁻⁻1, ये साइड है तो एरिया कितना हो जाएगा? 10⁻⁻1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। और cos 0 मतलब 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², तो दैट विल बी 3 इंटू 10 दैट इज 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर? क्या हो गया? बोलना बच्चा, क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है? आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब 2014 2020 का क्वेश्चन है और ये भी 2020 का। चलिए 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 फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। यार इनका मैथ का तो बड़ा सीन हो गया मेरा। ओके सो भाई साहब फटाफट से इसको देखते हैं। गिवन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई साहब, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। तो भाई साहब आपका वाईजेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये आई कैप है ना। तो एक्स वाई जेड प्लेन अगर आप देखोगे तो ये हो गया लेट्स से आपका एक्स, ये हो गया भाई साहब आपका वाई और ये हो गया आपका, तो ये वाई जेड प्लेन है, देखो ऐसा वाई जेड प्लेन है और ये एक्स है, ठीक है। इसके दरमियान है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दरमियान है भाई साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज हाउ मच? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 5 इंटू 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलम, ठीक है, इस तरफ है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड टू अ स्क्वायर 10 सेंटीमीटर। अभी स्क्वायर को ऐसे रखा गया है वाई जेड प्लेन के पैरेलल, ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो स्क्वायर ऐसे है देखो, ठीक है, इट इज बेसिकली लाइक दिस। ये भाई साहब स्क्वायर, इसको चलिए छोड़िए, यहाँ पे आपका भाई साहब स्क्वायर ऐसे रखा गया है, इसका प्लेन क्या है? वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ठीक है।
तो इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर और इसके बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0। इसका एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 0। तो फ्लक्स भाई साहब कितना हो जाएगा, फ्लक्स विल बी सिंपल ई ए कॉस 0, ठीक है, ई ए कॉस ऑफ 0। ई की वैल्यू हो गई 5 × 10⁻3, ठीक है, न्यूटन कूलम है। ए को भाई साहब आपको 10 सेंटीमीटर है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 10 × 10⁻², दैट इज 10⁻⁻1 मीटर का स्क्वायर है ना। तो दिस विल बी 10⁻² मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 10⁻² मीटर स्क्वायर, इसका आ गया भाई साहब कितना, 5 × 10 है ना, तो आप आपका 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये हो गया भाई साहब फ्लक्स, दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, ठीक है। ओके, व्हाट वुड बी द फ्लक्स टू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स 30 डिग्री एंगल। सिंपल, आप cos 30 कर दोगे, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो 50 का हाफ कर दोगे, सीधा आपका आ जाएगा कितना, दिस विल बी इक्वल टू 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, cos 30 का हाफ, क्लियर है। अरे हाँ, cos 30 √3/2 होगा ना, ओके ओके ओके। सो आपका 25 √3 होगा, 25 √3, यस यस यस, 25 √3 हो जाएगा भाई साहब। मैंने 60 डिग्री बोला था सर। 30 डिग्री इसके साथ बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्स एक्सिस के लिए 30 डिग्री बना तो 90 - 30 हो जाएगा, तो 60 डिग्री होगा। If the same square, if the plane makes an angle 30 डिग्री with the x axis, तो 30 डिग्री तो बन रहा है इसका, 60 डिग्री कहाँ से बन रहा है? अरे प्लेन को ऐसे किया है ना। सर एक्चुअली मुझे पता नहीं, पर मैंने सब क्वेश्चन नहीं, अगर मैंने इसको टिल्ट भी किया, इसको अगर मैंने टिल्ट भी किया तो वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना एक्स एक्सिस के साथ, तो मतलब कितना हो जाएगा, ई के साथ उसका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 25 √3 होगा। नहीं भाई साहब, ये आंसर गलत दिया हुआ है। प्लेन ऑफ द स्क्वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट 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 करेक्ट, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके साथ ये 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अभी इसका एरिया वेक्टर अगर आप लोगे, एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, है ना, एरिया वेक्टर के साथ ये कितना बन जाएगा, ये 30 है, ये वाला एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, तो इसके साथ कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के साथ 60 बन जाएगा, यस करेक्ट करेक्ट, ठीक है। तो एरिया वेक्टर के साथ भाई साहब होगा 60, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी ई ए कॉस 60, ठीक है। सो इन दैट केस इट विल बी 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी राइट है।